you have one life, one pran. You get one pran account when you open the NPS account, so that's one pran. और एक प्रण, Right. एक प्राण और एक प्रण. प्रण है आपको रेगुलर सेविंग करने की. So hello everyone, welcome back to the third episode of our podcast. Today with me again, I have a very special guest, Mr. Ravikant Rathore. Hello sir. Hello, hi Arnav, how are you? I'm doing pretty well. After our last conversation, you really lightened some burdens I was carrying. No, definitely. See, retirement looks like scary thing, of course, but if you plan it right, you'll get it right. You will get into a comfortable retirement then. So sir, मेरा एक दोस्त है and he had a great story to share with me. His grandmother, she worked as a school principal for a long time at a government school, and right now she is drawing a pension through that scheme because she was a government teacher. And he told me that she often says कि अब इतनी pension आ रही है और मुझे पता भी नहीं कि इस पैसे का करना क्या है. And I think that's a great problem to have. So Of yeah, course. that is definitely a case which it really tells you how it can actually help you. It's a good example, a real life example of what a good retirement planning can do. And she never had to plan for that. It was a government scheme. Do I have something like that? मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अर्नब, आई फुली एग्री विथ यू. जो जिन एम्प्लॉयज़ को आज भी पेंशन मिल रहा है, दे डोंट हैव टू वरी एंड ईदर दे प्लान फॉर इट, ऑफ कोर्स. हाउएवर, लेट मी गिव यू जस्ट अ बैकड्रॉप इन टर्म्स ऑफ लाइक ये जो पेंशन की समस्या है, जो इस तरह से दिस हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट. इफ़ यू लुक एट जो उनकी दादी के समय जो था, अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. सी, एंड दैट इज़ हाउ दिस होल प्रोसेस हैज़ हैपेंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो. तो दुनिया के कई देशों में जैसे ये शुरू हुआ था, जो गवर्नमेंट पेंशन पे करती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बिन रियलाइज्ड कि ये देखा गया है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये पेंशन का बोझ बढ़ जाता है. सो दैट्स वेयर द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट इट इज़ unmanageable. Even today there are many countries in the world which have got a huge deficit in their budgets when it comes to funding the pensions. सो ये जो पेंशन की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या थी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये सिमिलर समस्या थी व्हेन देयर वाज अ ग्रोइंग budgetary allocation that they went to the pensions. And as we know, the more allocation goes into meeting these expenditures only, the less goes into the building of infrastructure kind of thing. So if you really want to prudently manage the finances, you need to get off this load out of your head. तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये जो स्कीम थी, पहले पेंशन जो मिलती थी, ये 2004 के बाद बंद हो चुकी है. सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑल्सो थॉट अबाउट इट दैट दिस पेंशन, प्रोवाइडिंग फिक्स्ड पेंशन, जो कि पुराने समय में डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम होता था. So let me take you back to the defined benefit to the defined contribution concept that has evolved worldwide also and in India also. So if you look at around till the late 90s, I would say that late 90s, government of India also realized that pension funding is a big cost to the government and it drains them fiscally. Right. And the onus to fund that should be either partially shared with the employees, or else it should be extended to the or should be limited to the extent that the government contributes and just leave it there. And hence from defined benefit, पहले जो था डिफाइंड बेनिफिट कहा जाता था, यानी आप इतने सालों तक काम करेंगे और आप रिटायर होंगे तो आपको आपकी सैलरी का इतना हिस्सा आपको पेंशन मिलेगा. सो दैट scheme, which was called as defined benefit scheme, has now been shifted and converted into a defined contribution scheme. Now defined contribution scheme is basically the government or your employer. Basically, I will start with the government thing. The government contributes to the employer's account some amount, okay, every month, and that amount is the only thing. उसके बाद उस अमाउंट से जो भी ग्रोथ आती है उसका पेंशन employees will be generating. So now this is where it became reasonably fiscally prudent for the government also, and hence if we see the transition has happened to defined contribution. अब defined contribution में क्या होता है? defined contribution में हम आप सब इन्वेस्ट करते हैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा, और उस हिस्से का जो ग्रोथ होती है उससे हम अपनी पेंशन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं. सो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इज़ दैट पार्ट विच इज़ वेयर 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नेशनल पेंशन सिस्टम. So it's a beautiful scheme that they came up with, and conceptually if you look at it, it's kind of like, आप
एक तरह से फिल इट शट इट फॉरगेट इट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. सो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो कि फिल इट शट इट फॉरगेट इट किस तरह से होता है, तो मैं आपको पहले आप फेजेस को देखिएगा, अपने रिटायरमेंट के फेजेस को. आपकी एक वर्किंग लाइफ होती है और फिर एक रिटायर्ड लाइफ होती है. तो आपकी वर्किंग लाइफ में आप एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, आप सेव करते हैं उसे, आप उस पर रिटर्न जनरेट करते हैं, एंड देन व्हेन यू गेट रिटायर्ड और व्हेन यू रिटायर, तब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ पेंशन मिलती है. ठीक है. सो इफ़ यू लुक एट इट इन दैट कंटेक्स्ट, इफ़ यू हैव पीएफ, अ प्रोविडेंट फंड, एवरीबडी सेज दैट कि हमारा तो पीएफ में पैसा जाता है, हमारा उसमें से पेंशन आ सकता है. सो पीएफ का पैसा जब आपको मिलता है, दैट इज़ अ लमसम मनी दैट यू Right. गेट. It doesn't give you a regular income. Even if the pension part is there, which is of course the pension part also, which goes, a small amount goes into it, that is not sufficient enough. You get a very small amount as a pension then, if you opt for that. Okay. So अब आपके पास में ये जो प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी इन सारी फेजेस के लिए हेल्प को, यानी कि आपको रेगुलर सेविंग्स भी करे, आप जिसमें रेगुलर सेविंग्स कर सके, आपकी टैक्स बेनिफिट भी हो उसमें, वो रिटर्न्स भी जनरेट करे आपके लिए अच्छी सी, और साथ साथ में वो आपको पेंशन भी जनरेट करे. सो अगर ये सारे फीचर्स अगर किसी में है, तो वो नेशनल पेंशन सिस्टम में है. Right. जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट प्रोवाइड्स यू कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन. आप चाहें तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो जाती हैं. एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पास मिल जाता है, और साथ साथ में आपको एक एन्युटी की प्रोविज़न मिल जाती है. एन्युटी यानी कि एक तरह का पेंशन हो गया. आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने मिलेंगी जब तक आप जीवित हैं, और जब आपके पास ऑप्शन भी है कि आपके बाद आपकी स्पाउस को, आप उनको भी, फैमिली को भी कंटिन्यू हो सकती है. सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल in this, and that's where, this is where NPS works beautifully for you. Apart, I mean, it's an end-to-end solution to your retirement requirement. तो sir, in the last few episodes we have discussed a few things. हमने ये डिस्कस किया कि रिटायरमेंट होता क्या है, और रिटायरमेंट ज़रूरी क्यों है, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, एंड किस किस तरीके से वो करनी चाहिए. इस एपिसोड में मैं समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द राइट मीडियम फॉर मी टू प्लान माई रिटायरमेंट. किस तरीके से, किस जगह से मैं ये करूँ. Okay, cool. So, Arnav, if you want to start this, as I said earlier, NPS is a beautiful product for you to begin with. You don't need to be an employed person. Even if you're not an employed person, you can still open an NPS account. You just need to go log into the website of eNPS, PFRDA website, NPS Trust website. There are websites where you can go and open your NPS account, which is also called as permanent retirement account number, which is a PRAN account number, which we call, of course. And ये एक तरह से अगर मैं इसे कहूँ, तो मेरे लिए मैं इसे कहता हूँ कि दिस इज़ योर प्राण. You have one life, one pran. You get one pran account when you open the NPS account. So that's one pran. और एक प्रण. राइट. एक प्राण, एक प्राण और एक प्रण. प्रण है आपको रेगुलर सेविंग करने की. You need to just invest regularly in this NPS scheme, and over a period of time, when you reach to the age of 60, you have the option to buy annuity. So I have to explain you the whole structure this way. NPS has an option for you to invest in equity, corporate bonds, GSEC, and alternate assets. You invest a particular fixed amount, you can invest regularly, you can ask your employer to deduct a part of your salary and invest it into NPS. There's no limit in terms of investments. And as you keep on investing in it, you can always opt for different fund managers also. You can move between different allocations. So at times, if you feel that you want to increase your equity allocation, you want to reduce your equity allocation, you can do that at any point of time. In a year, you get 4 times option to change your asset allocation. You get once in a year, you get an option to change your fund manager. There are 11 fund managers, 10 fund managers as of today. 11th is in the pipeline. So there are 10 fund managers for you basically today to opt for. And when you invest, and at the age of 60, when you retire, okay, that point of time, you have the option to withdraw 60% of your savings, your NPS amount,
and for the 40% at least, that's a minimum amount. You can opt for 100% up to 100% as a amount to utilize to buy annuity. Right. So that 40% amount you buy an annuity, and annuity is a financial product, is an insurance product which assures you of certain fixed payment, monthly payment, okay, and till the time you're alive kind of thing. And you can opt for even like, even after you, your spouse can get that fixed amount thing. So that way you can ensure that you get a regular amount which is your pension. So basically आपने अपना पेंशन खुद क्रिएट किया है, और आप अपने पेंशन के आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको कितना पेंशन चाहिए. So that way you can control as to whether you want to buy annuity for 40% of amount, 50% amount, 60% or 100% of amount, depending upon that. तो सर आपने मुझे बताया कि there is a lot of flexibility which is offered to anyone who opts for this scheme. Is this a government scheme? Can you tell me more about that? Okay, so NPS is started off as a government scheme. 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया, and it was initially only for government employees. As I said that how it evolved from defined benefit to defined contribution, and government wanted to offload, I mean, kind of like their own burden on the budget and balance sheet. So 2004 में ये NPS सिस्टम लागू हुआ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी हो गया. यानी कि 2004 के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हैं उनके लिए there is no fixed pension from the government, but whatever amount they will save in NPS, basis that their pension will be whatever they choose for, kind of thing. लेकिन 2009 में government of India felt that this product works beautifully and it is actually had a very good track record. So they opened it for general public. So there are 3 models which we call in NPS. There are 3 models. Okay. One is a government model, government sector model. So government sector model is basically the NPS product for government employees. Right. Okay. So it is a little different from other product NPS products available for other subscribers, in the sense that the asset allocation is different. The asset allocation is a composite scheme where there is a mix of equity, debt, and equity debt in a way, in a predefined way. Okay. So there are limited things. So it's a product which is for government employees. Then comes the corporate model. The corporate model products are the NPS schemes which are available for private sector employees. So पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिडक्शन उनके सैलरी से करके गवर्नमेंट NPS को मनी डिपॉजिट कर देती है. लेकिन वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हुआ. प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कुछ ऐसा प्रोविजन हो तो उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल है, जहाँ पर कंपनीज अडॉप्ट करती हैं NPS, और वो एम्प्लॉयज़ के अपने एम्प्लॉयज़ के अमाउंट को डिडक्ट कर NPS के जो प्रान अकाउंट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, that is which is an account number for every individual as an identifier. So वो account में transfer करती है. So it's a corporate deduction that happens. That's a corporate sector model. And then the government also introduced all citizens model. अब हम कहेंगे कि चलिए गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए तो NPS हो गया, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल हो गया. लेकिन जो बिजनेसमैन है या छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट मॉडल में नहीं कवर होते हैं, हमारे फार्मर्स हैं या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में शायद नहीं है अगर, तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल सिटीजन्स मॉडल है, विच इज़ अ वॉलंटरी मॉडल, इन विच द स्कीम रिमेन्स द सेम विच इज़ अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल. आपको ऑप्शंस वही मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एम्प्लॉई हो और आपका डिडक्शन हो. ये आप खुद अपने वॉलंटरीली जो डिपॉजिट करते हैं वो अकाउंट होता है. बट अगर समझ लीजिए कि जैसे आप और मैं अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, ओके, सो दैट डजंट मीन दैट कि आई शुड गो ओनली विद द कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल एंड आई कैन नॉट गो विद द ऑल सिटीजन्स मॉडल. बेसिकली दोनों स्कीम्स सेम है, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल इसलिए कहा जाता है ताकि वहाँ पर कॉर्पोरेट्स डिडक्ट करती हैं, और अगर कॉर्पोरेट्स डिडक्ट नहीं करते, हम खुद कर लेते हैं अकाउंट ओपन कर, तो उसे वॉलंटरीली और ओपनिंग द अकाउंट कहते हैं, जिसे ऑल सिटीजन्स मॉडल कहते हैं. राइट. सो दैट इज़ द 3 मॉडल्स. वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दैट. आप इसको सिंपल से लेना है तो सिंपली ये सोचिए कि अगर हम और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हम ऑल सिटीजन्स और कॉर्पोरेट मॉडल में आते हैं, और स्कीम्स सेम रहती हैं, सारी फैसिलिटी, सारी प्रोविज़न, सब कुछ वही है, सेम है, सिर्फ मोड ऑफ डिडक्शन चेंज हो जाता है. यहाँ हम ऑल सिटीजन्स मॉडल में हम खुद करते हैं, कॉर्पोरेट मॉडल में
कंपनीज डिडक्ट करती हैं Right. जिनके लिए हम काम करते हैं। और अगर मेरी कंपनी डिडक्ट कर भी रही है और मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है वॉलंटरली, Hmm. आई डोंट नीड टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट इन द सेम वेरी सेम अकाउंट, आई कैन स्टिल डिपॉजिट मोर मनी. So that is for the models thing. Under that, if we go, there are two kind of schemes. I mean, first of all, there are asset class wise schemes in Hmm. it. So we have equity, we have corporate bond, we have GSEC, Okay. and we also have the fourth asset class, which is an alternate asset class. Hmm. So equity, as the name itself suggests, the scheme consists of or invests only in equity securities. GSEC invests in GSEC securities, the state government and the government of India securities. Hmm. Corporate bonds are investment in debt securities issued by companies, Right. corporates. So that's how different asset classes have different benefits and all play a different role. And one may have a different combination of these three asset classes. And there's also the fourth asset class, which is alternate asset class, which basically invests in स्पेशल प्रोडक्ट्स जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होती हैं, बॉन्ड्स ऐसी जो परपेचुअल बॉन्ड्स होती हैं, या रीट्स इन वीट्स जिसे हम कहते हैं. ये थोड़ी सी हम कभी और चर्चा करें इसके बारे में डिटेल में, लेकिन देयर एसेट क्लास इज देयर, बट एलोकेशन टू अल्टरनेट एसेट्स इज़ लिमिटेड टू ओनली 5%. Right. सो मैक्सिमम आप वही कर सकते हैं. आपको इक्विटी में सिर्फ मैक्सिमम 75% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है. Right. 100% इक्विटी में डालकर रिस्क आप बढ़ाने से Right. नहीं रहेगा. इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस, PFRDA गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्ट्स योर एलोकेशन टू इक्विटी Hmm. अप टू 75% मैक्सिमम दैट यू कैन डू. इसमें NPS में देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. वन इज़ अ Tier 1 अकाउंट एंड अनदर इज़ अ Tier 2 अकाउंट. सो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और GSEC जो है, Hmm. ये तीनों Tier 1 में भी मिलते हैं, Tier 2 में भी मिलते हैं. देर आर Tier 2 स्कीम्स बेसिकली. सो Tier 1 में भी इक्विटी स्कीम्स होंगे, Tier 2 में भी इक्विटी स्कीम्स होंगे. अब इसमें फ़र्क क्या है? Hmm. सो वन ऑफ द की डिफरेंस इज़ दैट कि जो Tier 1 है वो कंपलसरी अकाउंट होता है. यानी Okay. आप जब NPS अकाउंट ओपन करते हैं और NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो Tier 1 अकाउंट में आप इन्वेस्ट करेंगे. Hmm. कंपलसरी इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसमें, उसको मेंटेन करने के लिए. एंड आपका जो टैक्स बेनिफिट होता है वो सिर्फ आपको Tier 1 अकाउंट में मिलता है. Tier 1 Okay. अकाउंट की लॉक इन होती है, आप 60 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. All right. लेकिन Tier 2 अकाउंट जो होती है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है. अगर आप कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर आपको इसमें लॉक इन नहीं करना है, No lock-in. नो लॉक इन, Hmm. इसमें कोई लॉक इन नहीं होता. आप जब चाहे इन्वेस्ट कीजिए और जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एडिशनली करना है, तो आई कैन एनी टाइम चूज टू इन्वेस्ट इन Tier 2 अकाउंट्स एंड आई कैन ऑल्सो विड्रॉ इट एनी टाइम. जब मुझे ज़रूरत पड़े या कुछ लगे तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. दिस इज़ जस्ट अ टॉपिंग अकाउंट बट विदाउट अ लॉक इन एंड नो टैक्स बेनिफिट. Hmm. So no lock-in but no tax benefit also. Right. For tax benefit and for your savings for retirement, Tier 1 is the one account in which you should invest more of like. Right. So basically ये आपको टू इन वन प्रोडक्ट मिल जाता है. एक आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की प्रोडक्ट हो जाती है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपकी प्रोडक्ट बन जाती है. Hmm. And NPS schemes charge one of the lowest fees in the world in terms of pension products, just 0.09 bips for you. And it's like less than 10 bips. अब bips क्या होता है Hmm. जनरली? आप अगर अनव इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ़ आई से 100 का 1% क्या होता है? Hmm. से 1 रुपी. Right. तो 1 रुपी का 1% क्या होता है? Which is 1 1 paisa. paisa. That 1 paisa is bips. That's what we Okay. call. Okay. So when I say 0.09%, which is like 9 bips, Hmm. that means just 9 paisa per 100 rupees. Hmm. So that's one of the lowest fees in the world, basically for any pension products throughout the world. That sounds like a very good. So Yeah. NPS actually provides you one benefit of different asset classes. So asset allocation benefit, flexibility in terms of choosing your asset classes, allocation. So as complete flexibility in terms of choosing your pension fund manager. Hmm. You have a tax benefit while investing, when you invest, during the investment, and when withdrawing, as well as at the end of the tenure, when you attain the age of 60, आपको टैक्स बेनिफिट वहाँ भी मिल जाता है जब आप विड्रॉल करते हैं तब भी. प्लस आप अपनी पेंशन को खुद क्रिएट कर लेते हैं. आपके पास में बहुत सारे एन्युटी प्रोवाइडर्स के ऑप्शंस मिलेंगे. Hmm. आप उनमें से जो भी आपको लगता है जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है एंड यू थिंक दैट दे आर गिविंग यू गुड एन्युटी, you can go ahead.
एंड एन्युटीज़ में भी ऑप्शंस मिलती हैं आपको। एन्युटीज़ में आपके पास रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस या विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शंस मिलती हैं, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि एंड जो इंश्योरेंस एन्युटी प्रोवाइडर जैसे है, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कहते हैं एएसपी, वो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे, बट साथ साथ में जब हम ना रहें, जब हम नहीं हैं इस दुनिया में, तब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे भी लौटा दे। बिल्कुल। तो वो ऑप्शन भी मिलता है। और अगर वो हम चाहते हैं कि नहीं, आप हमें हमारा पैसा नहीं लौटाते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं हमें हायर अमाउंट पे करें, तो आप वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपके पास रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड रिटर्न ऑफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शंस होते हैं। दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा एन्युटी अमाउंट्स का, बट अगर आप एनपीएस ट्रस्ट के वेबसाइट में जाएंगे, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस एट डिफरेंट एजेस एंड एट डिफरेंट amounts. So this is the whole product. I would say that NPS does the work beautifully. आपको और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, बस अपना NPS अकाउंट ओपन करना है और उसमें रेगुलर सेविंग्स करनी है। आपके पास ऑप्शंस एसेट एलोकेशन की है, पेंशन फंड मैनेजर की है, और साथ साथ में एन्युटी भी आपको ऑप्शन में मिल जाती है कि जब आपको रिटायर होते हैं तब आप अपना पेंशन क्रिएट कर लीजिए। तब आप, जैसे आपके दोस्त की दादी की तरह, आप भी कह सकते हैं कि मुझे अब तो चिंता ही नहीं है अपनी पेंशन की। राइट। सो नो पेंशन की टेंशन। सो सर, लास्ट मंथ आई वेंट ऑन माई फर्स्ट एवर गोवा ट्रिप। तो अब ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी गोवा ट्रिप्स हैं। गोवा या गांव, अर्नब, डिपेंड करेगा आप कितना सेव करते हैं।